Hello everyone, welcome to Manual Education. So in this video we will going to discuss about CMAT 2022 most expected GK question. So as we know we have two types of GK question. One is nothing but static affairs and other is nothing but current affairs. So I already made a video related to analysis. So previous year में कौन से question ज़्यादा आए थे और उसके previous year में we can say nothing but 2020 में कौन से questions आए थे and 2021 में कौन से question आए थे. So I have made a video on that. So let's discuss in this video related to current affairs. So what we have to prepare in current affairs. So first nothing but this is your first question related to sports. So अभी recent जो event हुआ है ICC से, so nothing but your T20 cricket World Cup. So who is the winner of this World Cup? Is nothing but Australia. So exactly question will be framed like this: who is the winner of the T20 World Cup 2021? Is nothing but Australia. And who was the opponent? Opponent कौन थे इसके? Australia versus New Zealand. So New Zealand was opponent. In the same way, they can ask you the question related to static affair also. So, who is the Prime Minister of Australia? So, ये question तो अभी क्या आपने question किसके related पढ़ा था? Australia के related. So, we have to understand this scenario also. So, we have to prepare static affair also. So, static affairs क्या है यहाँ पे? Who is the Prime Minister of Australia? Is nothing but Scott Morrison. And same way they can ask you the capital of Australia is also. So, capital currency पूछ सकते हैं. So, capital is nothing but Canberra. Okay, so the same way we have to prepare current affairs and the same way we have to prepare static affair also. Related बहुत है इसके related. So mostly you have to prepare like this way. So first we will discuss about the list of the questions related to current affairs and then we will going to cover top 20 questions from October 2021. So first we have to understand these are the list of the questions we can expect in your current affair topic. So some international questions, news, international based news will be there. Some national news questions will be there. State level questions भी बहुत सारे पूछते थे. उसके बाद appointment, resignation. So appointment of PM, resignation of PM, appointment of any CEOs, okay, CFOs. So इनके related questions पूछे जाते हैं. Finance and economy के related बहुत सारे questions आपको मिलेंगे. So we can expect business level questions will be there. एग्रीमेंट और एमयू के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. दो कंट्रीज के बीच में बायलैटरल एक्सरसाइज होती है. सो डिफेंस के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, अपॉर्चुनिटीज के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं. किसी का डेथ हुआ है सो ये इसमें अपॉर्चुनिटीज में आते हैं. ओके, देन एप्स और पोर्टल. ओके, इफ गवर्नमेंट लॉन्च अ स्पेसिफिक ऐप, नहीं तो कोई बैंक ने ऐप लॉन्च किया है, नहीं तो किसी कंपनी ने ऐप लॉन्च किया है, सो ये इसमें आता है. ऐप और पोर्टल इसमें आता है. रैंक, सो कोई इंडेक्स आते हैं लाइक लेट्स से कि हंगर इंडेक्स आते हैं, नहीं तो फिर कुछ पासपोर्ट इंडेक्स आते हैं. सो ये जो इंडेक्स है विच इज कम इनटू दिस रैंक. सो इंडिया का रैंक कितना है, ऐसे क्वेश्चंस इसमें फ्रेम होते हैं. देन लास्ट इज नथिंग बट योर साइंस एंड एनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. सो दिस इज नथिंग बट योर टॉप 15 टाइप्स वी कैन से. और यहाँ से हम लोगों को कुछ क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं. सो वी हैव टू प्रिपेयर दिस टॉपिक वेरी वेल. ओके, so when you prepare current affairs so you have to prepare like this way. so ये हमारे list of topics है, इससे questions बहुत आ सकते हैं. so without wasting time we'll start with the top 20 questions from October 2021. so before going to start this topic, big announcement for all MBA aspirants. We have launched specific channel for MBA, so where you will get the all updates. So this channel name is nothing but Manure MBA Entrance. So you have to subscribe this channel immediately. So from 31st December 2021 we will going to upload all the MBA related videos, in particular this channel. So you have to subscribe this channel and don't forget to press bell icon. So Manure launch for MBA Entrance 2022. So if you are preparing for CMAT, MBA CET, TEAS or other examinations, so you have to contact on this number 8828581455. What you will get is nothing but live lecture, then shortcut tricks, doubt classes, books will be provided to you, recorded video will be there, then topic test, mock test, WhatsApp group will be formed, then 10,000 plus questions are there, mentorship will be provided you, mentor will guide you in every situation. So you have to contact on this number. We have classroom coaching also, so you can contact on these numbers if you stay near to these centers. So we have 3 centers. One is nothing but Borivali, Vasai and Dadar. So let's start with the first question related to international news. So first question is nothing but which country issue LOE, nothing but LOE is nothing but letter of exchange with India to formalize 7 additional entry exit trade points. So ये country का नाम क्या है? भूटान. Okay, so this is most important. LOE, letter of exchange विथ विच कंट्री हम लोगों ने किया था. सो ये 7 एडिशनल एंट्री एंड एग्जिट ट्रेड पॉइंट्स है. सो आंसर इज भूटान. ओके, सेकंड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू स्टेट न्यूज. विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप गंगा एटलस रिवर ऑफ पास दैट वाज लॉन्च ड्यूरिंग द 5th गंगा उत्सव. सो ये लॉन्च होता है हमेशा यूपी में.
सो यूपी में कौन सा आईआईटी है? सो आईआईटी कानपुर. सो आंसर इज आईआईटी कानपुर. सो विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च दिस? सो आंसर इज आईआईटी कानपुर. और आईआईटी कानपुर कहाँ पे है? यूपी में. Now next question is related to appointments. So who was appointed by the Ministry of Communication in November 2021 to head Technology Innovation Group on 6G connectivity? So answer क्या है इनका? Rajaraman. Okay. Next, name the first Indian personality who recently in 2021, October 2021, appointed as a chairman of World Steel Association. World Steel Association के head कौन है? और we can say chairman कौन है? So the answer is सज्जन जिंदल. जिंदल स्टील के मालिक. स्कीम के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द कैंपेन लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुवर्ड्स द डोर टू डोर कैंपेन फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन. तो ये कैंपेन का नाम क्या है? तो कैंपेन का नाम क्या है? हर घर दस्तक. सो आंसर है ऑप्शन नंबर 5. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड नेशनल स्कीम्स, नेशनल स्कीम फॉर मिड डे मील्स इन स्कूल. जो मिड डे मील स्कूल जो स्कीम है उसको रीनेम किया है. उसका नाम क्या है? पीएम पोषण. ओके, इसका नाम क्या है? पीएम पोषण. इसका रीनेम किया मतलब नाम चेंज कर दिया है उन्होंने. सो ये स्कीम का नाम क्या है? पीएम पोषण. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू अवार्ड. सो सत्यजीत रे, द ओनली इंडियन टू रिसीव एकेडमिक ऑनरी अवार्ड, रिसीव द प्रेस्टिजियस अवार्ड इन विच ईयर? ये ऑनरी एकेडमी अवार्ड ये किसके रिलेटेड? ऑस्कर अवार्ड है ये. ओके, सो सत्यजीत रे को कब मिला था? सत्यजीत रे को मिला था 1992 में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन. नेम द मूवी दैट वाज सिलेक्टेड एज द इंडियन ऑफिशियल कैंडिडेट फॉर 2022 ऑस्कर. तो उसका नाम क्या है? कुजंगल. ओके, ऑप्शन 5 इज योर राइट आंसर. अवार्ड्स के रिलेटेड एक और क्वेश्चन है. Who was the 2021 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? किसको मिला है? सो ये अब्दुल रजाक गुरना. ओके, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर. डिफेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं. सो विच कंट्री पार्टिसिपेट विद द इंडिया इन मेडन जॉइंट ट्राई सर्विस एक्सरसाइजेस कोंकण शक्ति? कोंकण शक्ति में कौन आता है? कोंकण कोस्ट इन अरबियन सी. कहां पे हुआ है? कोंकण सी एंड अरबियन सी, कोंकण कोस्ट में हुआ ये. ओके, so the answer is UK, United Kingdom. Mostly the question will be framed in defense is nothing but joint exercise होती है, nothing but a bilateral exercise between two countries. So ये इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं. लेकिन एक और क्वेश्चन लिखते हैं. Which country participate in the India 17th edition? This is also important. कौन सा एडिशन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. Sometimes they will frame the question like this कि पूरा आंसर बता देंगे और कौन से कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था वो भी बता देंगे, लेकिन वो कौन सा एडिशन था ये पूछ लेंगे. सो ये भी जानना आपको इंपॉर्टेंट है. सो उनको अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट फ्रेम करना है सो ये ऐसे फ्रेम करेंगे. ओके, 17th एडिशन था जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्स युद्ध अभ्यास. तो ये किसके बीच में होता है? एक्स युद्ध अभ्यास 21. सो द आंसर इज यूएसए. ओके, यूएसए के साथ एक और मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, उसका नाम है मलाबार. ओके, रैंक के रिलेटेड क्वेश्चन आता है. रैंक के रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन इज नथिंग व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द 58th एडिशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021 RECAI. ओके, रिलीज बाय अर्न्स्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड. सो इसका रैंक कितना है? इंडिया का रैंक 3rd रैंक है. सो वी हैव टू रिमेंबर दिस रैंक. सो ये किसके लिए? रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021 का. सो इंडिया का रैंक कितना है? 3rd. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन रिलेटेड टू ब्रांड एम्बेसडर. सो क्वेश्चन इज who was recently appointed the brand ambassador of India's first crypto unicorn CoinDCX. CoinDCX ये प्लेटफॉर्म है जहां से आप क्रिप्टो करेंसी बाय कर सकते हो. सो द आंसर इज नथिंग बट अमिताभ बच्चन. अमिताभ बच्चन इज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ CoinDCX. ओके, हु इज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पेटीएम? कमेंट कर दो. ओके, पेटीएम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? और एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हु इज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फोन पे? ओके, बिजनेस के रिलेटेड क्वेश्चन है. In October 2021, Dash become India's 5th most value company. कौन सा इंडिया का 5th most value company है? While the top spot was written by Dash. Top spot मुझे तो पता है is nothing but Reliance. तो ऑप्शन मेरा एक तो हो सकता है 3rd, नहीं तो 4th हो सकता है. But as we know 5th पूछा है उसने, recently हुआ है. So ये already हो चुका है HDFC. So HDFC is already in the top spot में already आ चुका है. So the next is nothing but ICICI. सो ICICI 5th नंबर स्पॉट उसने किया है मोस्ट वैल्यू कंपनी में. नेक्स्ट इज नथिंग बट 15 नंबर क्वेश्चन. दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट? सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CMAT एग्जामिनेशन, सो दे विल डेफिनेटली आस्क यू द क्वेश्चंस रिलेटेड टू बिजनेस.
So this is most important question. American multinational technology conglomerate Facebook was rebranded as Dash in October 2021. तो Facebook का नाम क्या है कि उन्होंने चेंज किया है, रीब्रांडेड किया है. सो न्यू नेम इज नथिंग बट मेटा. नाम क्या है? मेटा. नेक्स्ट इज नथिंग बट साइंस एंड एनवायरमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री रिसेंटली बिल्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू साइंस. ओके, सो वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट. सो आंसर is South Korea. Okay, when you see the question related to country, so we have to remember immediately, आपको याद रखना है साउथ कोरिया दिया है तो साउथ कोरिया का कैपिटल क्या है, ओके, सियोल, और करेंसी क्या है, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है. स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन है. विच टीम वॉन द 2021 डुरांट कप फुटबॉल टूर्नामेंट. तो आंसर है FC गोवा. आंसर क्या है? FC गोवा. Who won 2021 मेल्ट वाटर चैंपियन चेस टूर. ओके, तो आंसर है मैग्नस कार्लसन. आंसर इज मैग्नस कार्लसन. स्टैटिक जीके में कुछ क्वेश्चन आते हैं. व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस डिजास्टर रिस्क रिडक्शन UNDRR लोकेटेड. कहां पे है? सो आंसर इज जिनीवा, स्विट्जरलैंड. ओके, सो आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू. वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ. ओके, सो आपको जो आपका आंसर आपको कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में पुट कर दो क्या आएगा आंसर. यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पे है? Who was appointed as a president of ruling Liberal Democratic Party and said to become 100th PM of Japan. 100th PM, इनका रैंक कितना है? 100. जापान के PM है. सो ये एक क्वेश्चन ऐसा भी फ्रेम हो सकता है कि फूमियो शिदा ये कितने नंबर के प्राइम मिनिस्टर है. ओके, सो आंसर इज 100. और अगर पूछा 100th नंबर PM कौन है जापान के, तो आंसर है फूमियो किशिदा. ओके, क्वेश्चन यहां पे मैं एक फ्रेम करता हूं कि व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ जापान. प्लीज पोस्ट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स. सो इफ यू वांट डिटेल जीके क्वेश्चंस देन यू कैन जॉइन अवर क्लासरूम प्रोग्राम or you can join our online program also. So if you wanted to join our online program then you can contact on this number, or else you can visit our website also manuredu.com/MBA entrance, where you can buy GK booster. Okay, or else you can join our classroom program also. So we have 3 centers: Borivali, Vasai and Dadar. You can follow us on social media. We are on YouTube, Facebook, Instagram and Telegram. So check the link in the description. We have launched specific YouTube channel which is nothing but Manure MBA entrance, where you will get all the details related to CMAT examinations. You will get the GK updates and all the exam related updates. So thank you so much and all the best.